شمالی وزیرستان میں امن دشمنوں کے خلاف بڑی کارروائی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں اہم دہشت گرد وسیم زکریا 5 ساتھیوں سمیت ہلاک، 10 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہلاک ہونے والا وسیم زکریا ٹارگٹ کلنگ اور حکومتی اداروں پر حملوں میں ملوث تھا۔ 15 سپٹمبر کو ساری یونیورسٹیز، سارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ 23 سپٹمبر کو دوبارہ جائزہ لینے کے بعد جو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسکول میں آ سکیں اور ان کے لیے بھی کھول دیا جائے گا۔ اور آخری 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان، میٹرک، کالج اور یونیورسٹی کلاسز کا 15 ستمبر سے آغاز، 23 ستمبر سے مڈل کلاسز شروع کی جائیں گی۔ صورتحال کے جائزے کے بعد 30 ستمبر سے پرائمری کلاسز کی اجازت ہوگی۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا، مدارس اور ووکیشنل اداروں پر بھی اطلاق ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس۔ اگر ایک کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم 2 شفٹوں میں یا 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں۔ حد الوسع کوشش ہو کہ ان کے درمیان جہاں بچے بیٹھے ہیں ایک فاصلہ مینٹین ہو۔ کلیدی رول اس معاملے میں ہو وہ ماسک کا استعمال۔ اگر آپ کو کھانسی ہے، بخار ہے خصوصاً، تو آپ کسی صورت بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی مت جائیں۔ ایک روز آدھے طلباء کو بلایا جائے گا، آدھے چھٹی کریں گے۔ تمام تعلیمی اداروں میں سماجی فاصلے پر عمل درآمد اور ٹیمپریچر چیک کرنے کی سہولت یقینی بنانے کی ہدایت۔ ماسک بھی لازمی قرار۔ بخار، کھانسی یا کسی اور بیماری کی صورت میں طلباء اسکول نہ آئیں۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی داخل ہوتے وقت اسکریننگ کی جائے گی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا اعلان۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں فیصلوں پر بریفنگ۔ سندھ میں تمام تعلیمی ادارے 15 سے 30 ستمبر تک مرحلہ وار کھول دیے جائیں گے۔ مانیٹرنگ کمیٹیز روزانہ کی بنیاد پر اسکولز کا معائنہ کریں گی۔ SOPs کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہوگی۔ سعید غنی۔ کلبھوشن یادو کیس، وکیل کے تقرر کے لیے پاکستان کا بھارت سے دوبارہ رابطہ۔ دفتر خارجہ نے بھارتی ہائی کمیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کی کاپی کے ساتھ نیا نوٹ وربل بھجوا دیا۔ جلد وکیل مقرر کرنے کی پیشکش۔ بے روزگار افراد کے لیے خوشی کی خبر، حکومت نے نیشنل جاب پورٹل قائم کر دیا۔ ہر طرح کی آسامیوں کی تفصیلات دستیاب ہوں گی۔ وفاقی محکمے اور ادارے پورٹل پر اشتہار دیں گے، شہری مصدقہ معلومات حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا۔ صوبائی وزرائے اعلیٰ، سول اور عسکری قیادت کی شرکت شیڈیول۔ تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق صوبوں کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کی ملاقات۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج سمیت پارلیمانی معاملات پر گفتگو۔ سیاسی بد انتظامیوں کے باعث کراچی کے حالات بدتر ہوئے، وفاق مسائل کے حل کے لیے مالی وسائل فراہم کرے گا، عمران خان۔ حفیظ شیخ کراچی پیکج سے بہتری کے لیے پر امید، شہر قائد کے لیے مثبت اقدامات خوشائن ہیں، نجی شعبے کی حوصلہ افزائی سے معیشت میں بہتری لا رہے ہیں، بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ترجیح ہے، مشیر خزانہ۔ بارشوں سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا۔ 20 اضلاع میں 23 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو، آبپاشی کے نظام کی بہتری کے لیے بھی وفاقی حکومت سے مدد مانگ لی۔ مراد علی شاہ کا سکھر سے گدو بیراج تک فضائی معائنہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ۔
GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाजात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जुर्रत और बहादुरी की नई दास्तानें रकम करने वाले अफसरों और जवानों को एजाजात से नवाजा। शहदा और गाजियों के अहले खाना की भी शिरकत। यौम फजाइया, राशिद मिन्हाज शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड अब्बास घुम्मन ने कब्र पर फूल चढ़ाए। हरबंदपुरा लाहौर में रेस्क्यू 1122 स्टेशन का इफ्तिताह। रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। तफ्तीशी टीमों को जदीद तरबियत देकर करप्शन के खात्मे का आज़म। नैब हेडक्वार्टर्स और रीजनल ब्यूरोज में निज़ाम वज़ा कर दिया। मुल्की और बैनुल-अक़वामी इदारे की कारकर्दगी के मुअतरिफ हैं चेयरमैन जावेद इकबाल। पाकिस्तान में सरमायाकारी वक्त का अहम तकाजा। कमर्शियल कोर्ट्स के जजेस गैर जरूरी इल्तवा से परहेज करें। इंसाफ की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाना मिशन है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान का ट्रेनिंग वर्कशॉप से खिताब। कराची के इलाके ईसा नगरी में 5 साला बच्ची का कत्ल। MLO डॉक्टर जकिया ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। तहकीकात का दायरा वसी। 11 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। DNA कराने का फैसला। डॉक्टर महा खुदकुशी केस में नया मोड़। मरकजी मुलजिम की मुतवफिया के वालिद पर इल्जामात की बौछार। पहली वालिदा को छोड़ने पर माहा की वालिद से लड़ाई रहती थी। बाप बेटी में प्रॉपर्टी के फरोख्त पर भी इख्तलाफात थे। जुनेद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर किसी से होती है, उनसे सीखना चाहिए। तवील मुद्दत मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे नताइज बरामद होंगे। हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सजाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस में वकील मुकर्रर करने के लिए भारत से एक मरतबा फिर राब्ता किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में भारत को वकील मुकर्रर करने की दोबारा पेशकश कर दी गई है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म। भारत को गिरफ्तार रॉ ऑफिसर के लिए वकील मुकर्रर करने की एक और पेशकश। नया नोट वर्बैल अरसाल। सराय के मुताबिक दफ्तर खारजा ने भारतीय हाई कमीशन को नोट वर्बैल के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की नकल भी भिजवाई है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अपने जासूस की अपील के हक के लिए वकील मुकर्रर करे। सफारती जराये का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पाकिस्तान 1 माह कबल भी भारत को वकील मुकर्रर करने की पेशकश कर चुका है, मगर ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अदालत में भी कह चुके हैं कि भारत को तीसरी कौंसलर रसाई की पेशकश ताहाल बरकरार है। ताहम भारत मामले को सियासी रंग देने की कोशिशों में मसरूफ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करें कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत ने तालीमी इदारे बतदरीज खोलने का ऐलान कर दिया है। वजीर तालीम शफकत महमूद ये कहते हैं कि 15 सितंबर से 9वीं 10वीं की क्लासेस और कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोल दी जाएंगी, जबकि 23 सितंबर से 6ठी, 7वीं, 8वीं की क्लासेस शुरू होंगी। 30 सितंबर को जायजे के बाद प्राइमरी के बच्चों को भी स्कूल जाने की इजाजत होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो था उसने बहुत ज़्यादा तहकीक की। हमने भी अपने मुख्तलिफ लोगों से कंसल्टेशन की। जो
तालीमी इदारे हैं उनको बदतरीज खोला जाए। 15 सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के इदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं इंटरमीडिएट कॉलेजेस और 9वीं 10वीं क्लास स्कूलों में जो है वो भी उसकी भी इजाज़त हो जाएगी। 23 सितंबर को दोबारा जायज़ा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाज़त होगी कि वो स्कूल में आ सकें और उनके लिए भी खोल दिया जाएगा। 30 सितंबर को अगर हालात ठीक रहे, हालात का जायज़ा लेने के बाद आखिरी 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। यानी कि 15 दिन के अरसे में अगर हालात ठीक रहे, जो इंशाल्लाह लग रहा है कि होंगे, लेकिन हम बड़े बगौर जायज़ा लेने के बाद ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको खोल देंगे। और मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का ये बताना है कि तालीमी इदारों में समाजी फासला जरूरी होगा। क्लासरूम में 40 बच्चे हों तो 20 को एक दिन और निस्फ को दूसरे रोज बुलाया जाएगा। मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। बुखार, खांसी या किसी बीमारी की सूरत में तलबा हरगिज स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ना आए। तालीमी इदारे टेम्परेचर चेकिंग यकीनी बनाएं। हमारे जो टेस्ट हैं, जो हमारे टेस्ट की पॉजिटिविटी का परसेंटेज है, वो तमाम हमें तसल्ली बख्श दिखता है और हम एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अभी हमें स्कूल खोल देने चाहिए बतदरीज तरीके से। अगर एक क्लास के कमरे में 40 बच्चा आम हालात में बैठता है तो हमारी कोशिश ये होगी कि उसको हम 2 शिफ्टों में या 2 दिनों में डिवाइड कर दें। 20 बच्चे एक दिन आएँ और 20 बच्चे अगले दिन आएँ। हत्तुल वसा कोशिश हो कि उनके दरमियान जहाँ बच्चे बैठे हैं एक फासला मेंटेन हो। कलीदी रोल इसमें इस मामले में हो वो मास्क का इस्तेमाल है। ज़रूरी नहीं कि ये सर्जिकल मास्क ही इस्तेमाल हो। तमाम माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के लिए चाहे कपड़े का मास्क, एक कपड़े का हिस्सा लेके एक रुमाल नुमा जगह को, कपड़े को उसके साथ डोरियां डाल के उससे भी मास्क बनाया जा सकता है और उसको रोज़ाना धो के इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको खांसी है, बुखार है खुसूसन, तो आप किसी सूरत भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी मत जाएं। तालीमी इदारों को भी ये हिदायत की गई है कि इस किस्म की सिम्टम की स्क्रीन और जहां मुमकिन हो वहाँ टेम्परेचर चेक किया जाए ताकि बीमार बच्चे या बीमार नौजवान जो हैं वो तालीमी इदारों में ना आएँ। हम एक सेंटिनल स्क्रीनिंग करेंगे। चंद चुने हुए स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनमें हर 2 हफ्ते बाद टेस्टिंग होगी। अपडेट करें आपको कि आईजी पंजाब मुशावरत के बगैर CCPO लाहौर की तैनाती पर डट गए हैं। आईजी पंजाब ने जुमे को वजीर आजम से मुलाकात में इस तैनाती पर एतराज उठाया था। वजीर आजम ने आईजी पंजाब को वजीर आला से मुलाकात की हिदायत की थी। इसी पर बात कर लेते हैं। उमर जावेद हमारे साथ मौजूद है। उमर, कहिएगा क्या कुछ चल रहा है पंजाब में? उमर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, क्या कुछ चल रहा है पंजाब में? जी, पंजाब पुलिस की अगर बात की जाए तो उसके हालात तो बहुत ही अबतर दिखाई देते हैं। आईजी पंजाब जो बहुत ज्यादा असूल परस्त और असूल पसंद माने जाते हैं, उन्होंने CCPO लाहौर के रवैये के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान को जुमे को शिकायत की थी। मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा था कि इस तरह से मामला चलाने उनके लिए बहुत मुश्किल होंगे। वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर आज वजीर आला उस्मान बुज़दार से आईजी पंजाब की 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसके अंदर आईजी पंजाब बगैर यूनिफॉर्म पहने गए और वहां पर उन्होंने ना सिर्फ अपने खदशात से आगाह किया बल्कि उन्होंने कहा कि अगर CCPO लाहौर जिस तरह का रवैया रखे में इस तरह से काम चलता रहेगा तो उनके लिए काम करना मुमकिन नहीं होगा और फोर्स जो है वो मजीद डीमोरलाइज होती जाएगी। मॉडल टाउन थाने के बाद अभी पुलिस फोर्स खड़ी होना शुरू हुई है तो इस तरह के वाकयात सामने आना शुरू हो गए, जिसके ऊपर आईजी पंजाब वजीर आला पंजाब जो थे वो आईजी पंजाब और CCPO लाहौर के दौरान मसालियत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन आईजी पंजाब इस बात पे नहीं माने और उसके बाद शुएब दस्तगीर वहां से जब निकले तो उन्होंने दफ्तर अपना ज्वाइन नहीं किया बल्कि वहां से वो अपनी निजी मसरूफियात में बिजी हो गए और आज पूरा दिन आईजी ऑफिस के अंदर काम जो थे वो इल्तवा का शिकार रहे। पूरी पंजाब फोर्स यानी 2.25 लाख की जो फोर्स है, इस टाइम स्टैंडिंग फोर्स है आर्मी के बाद, उसके अंदर तहमगोइयां चलनी शुरू हो गई हैं और CCPO लाहौर जिन्होंने आने के बाद आईजी पंजाब और दीगर सीनियर अफसरान के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आज वो अल्फाज जो हैं वो पंजाब पुलिस के लिए बहुत महंगे पड़ रहे हैं और आईजी पंजाब जो है वो इस सूरत हाल में काम करना नहीं चाह रहे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका उमर।
it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.